को इतना बर्डन कर दिया है, तो हम एक और स्टेप ये लेना चाहते हैं कि ओबेसिटी की वजह से जिन लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डायबिटीज हो रहे हैं, सिस्टम को कम से कम इन पेशेंट्स से बचाना चाहते हैं. maybe we'll be able to make a small dent in the system. मैं डेनिश एम्बेसडर की बात की, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तो मैं चाहूंगी कि वो आपसे चंद एक बात करें. So, Her Excellency, Miss Liz Rosenholm, the mic is all yours. Yes. You'll have to turn it on. I think you'll have to turn it on, otherwise echo will come. Okay. Honest, I did not exactly understand what you said, but I think you asked me just to give a few words. That's right. Yeah. Exactly. Perfect. Well, welcome everybody. I think this is an exciting day. This is the day of the World Obesity Day. It's the day where we have launched the Obesity Leadership Forum. I think that's a very important day because obesity is a disease that we find quite difficult, all of us, to tackle. That goes for Denmark, it goes for Pakistan, it goes for all countries in the world. And how come that it's so difficult? And it's because it's stigmatized, and therefore it's difficult to talk about. So it's under-treated, it's under-diagnosed, and it's not very well understood. And I think by the launching of the Diabetes Leadership Forum, we can actually start that conversation. Because when you start the conversation, you can also start doing, you can start acting. And acting is needed. Obesity is becoming a pandemic globally. But looking at the numbers in Pakistan, numbers are alarming. And today, Pakistan is the ninth most obese country in the world. More than 45 million people is obese. So we need to start taking action, and with COVID-19 has only demonstrated how, have both demonstrated, but will also make the challenge even more difficult. And we do have lessons, and we do have solutions, but a lot of work needs to be done. So I'm very happy to be part of this journey going forward. It will be a partnership, a public-private people partnership. We need to share experience across societies, between countries, between government, public sector, companies, academia, NGOs, civil society, influencers. We need to have a collaboration between media and masses to get a much better understanding of the challenge at hand. So looking very much forward to being part of this journey, to contribute, and hopefully soon seeing progress, because it's, and I think we all agree on that, it's about time to start acting. So I will end here, but I'm very happy to chip in again a bit later. Thank you. Thank you so much. Oops. Thank you. Okay, got that. सुबह को मैंने एक सवाल पूछा था, पता नहीं अभी बोलना मुनासिब होगा नहीं होगा, लेकिन मैं कह देती हूँ. हमारे साथ इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं राशिद रफीक भट्ट साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर नोवो नॉर्डिस्क पाकिस्तान है. एक ऐसी कंपनी जो पिछले 90 साल से, तकरीबन 100 साल, एक सेंचुरी हो चुकी है, इंसुलिन बनाती है. दे आर द फ्रंट रनर्स इन डायबिटीज केयर. और एक इंसुलिन बनाने वाली कंपनी जो है इंसुलिन बेचती है और उसी से अपने पैसे कमाती है. और मैं पिछले 10 साल से इस कंपनी के साथ मुंसलिक हूँ, और मैंने हमेशा देखा है कि उनके बहुत सारे कैंपेन्स हैं जो कि प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करती है.
आज हमने ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए एक पहला कदम लिया है। इससे पहले हमने एक हेल्दियर लाइफ और फिट फॉर लाइफ के कैंपेन्स रन किए। हमने यूथ को इन्वॉल्व किया, हमने क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व किया, हमने ब्रांड एम्बेसडर्स को इन्वॉल्व किए, सब डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए। और मुझे ये बात समझ नहीं आई और मुझे काफ़ी साल लगे, काफ़ी वक्त लगा, और इवेंचुअली मुझे अच्छा लगा कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ जिनका सोशल स्टैंडिंग, जिनके मॉरल वैल्यूज और जिनके एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। वरना आम इंसान शायद समझ ही ना पाए कि ये तो नुकसान वाली बात है कि डायबिटीज, वो तो चाहते होंगे कि लोगों को डायबिटीज हो जाए और उनकी इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा बिके। चेंजिंग डायबिटीज अब तक का टैगलाइन था, और जो कंपनी 90 साल से डायबिटीज के केयर में फोर रनर्स हैं, उनको रिसर्च डेवलपमेंट और उनके और बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज आ जाती हैं और स्ट्रेंथ्स आ जाती हैं जिससे वो और काम कर सकें इसी फील्ड में, पेशेंट्स की बेहतरी की तरफ, लॉन्जेविटी की तरफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ। आज they've taken another revolutionary step and they've changed their perspective, to say the very least. So to tell you a little bit more about changing obesity and what that means for Pakistan, Pakistanis, diabetics, and Novo Nordisk Pakistan, I'd like to have Mr. Rashid Rafiq Butt speak. He is the vice. Thank you very much. Thank you so much from Novo Nordisk point of view. I think it's a very important day. Novo Nordisk जो है वो दुनिया में मशहूर है एक डायबिटीज़ कंपनी। पाकिस्तान में भी अब 10 साल से जो हमारा एक सफ़र चल रहा है उसमें द बेस्ट पेशेंट केयरिंग कंपनी के नाम पे, बेस्ट डायबिटिक केयरिंग कंपनी के नाम पे अब ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। नॉट बिकॉज ऑफ कि ये हमारा बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो बड़ा क्लियर है, जिसमें हमारी 3 जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। वन इज इन फाइनेंशियल, जो कि हमारा ऑफ कोर्स अर्निंग सोर्स होता है। सेकंड वन इज एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके ऊपर हमारा हर काम जो होता है उस पर हम बहुत अपने क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि कोई इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट ना हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो कुछ भी अर्न करते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम्युनिटी के ऊपर भी उसको इन्वेस्ट किया जाए। तो जिस तरह मुझे भी बात कर रही थी कि हम एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी हमें खुश होना चाहिए कि लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और ज़्यादा हमारी इंसुलिन जो है वो बिक रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सिचुएशन में जिस तरह डायबिटीज बहुत बड़ा बर्डन है, इसी तरह नॉट राइट नाउ, लेकिन आई एम श्योर कि डॉक्टर अब्बास उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं बिकॉज ही इज़ एन अथॉरिटी कि कितना बड़ा ओबेसिटी का मसला है यहाँ पे। सो एज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी जब हम अपने बिजनेस मॉडल पे देखते हैं और हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं कि हाउ टू एजुकेट टू द पब्लिक, हाउ टू इंक्रीज द अवेयरनेस, ताकि किस तरह इनको बेहतर किया जा सके। अभी तक हमारा लेबल था वो ये था कि चेंजिंग डायबिटीज़ के ऊपर, और अब जस्ट आंसर टू मुजना's क्वेश्चन, हम अब एक स्टेप और पीछे जा रहे हैं। जो रूट कॉज है वो ज़्यादा डिटेल में डॉक्टर अब्बास बात करेंगे कि अब डायबिटीज़ होती क्यों है, उससे पीछे भी कई ऐसे काम हैं जो अगर वहीं पे अगर एड्रेस किया जाए, जस्ट लाइक दिस चेंजिंग ओबेसिटी नाउ, आज हम इसको लॉन्च करें पाकिस्तान में, अगर ओबेसिटी को हम फोकस कर लेंगे तो शायद हमें आगे डायबिटीज़ को फोकस कम करना पड़े, क्योंकि रूट कॉज जो है उसको एड्रेस करना शुरू कर देंगे हम। सो इसलिए नोवो नॉर्डिस्क पाकिस्तान जो है वो बहुत एक्टिव है इन केयरिंग द डायबिटिक पॉपुलेशन। जिनको नहीं है उनके बारे में उनको एजुकेशन और अवेयरनेस देनी, उसके लिए काफ़ी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो चल रही हैं, जो कि टोटली नॉन प्रॉफिटेबल है, नॉन कमर्शियल है, और कंटिन्यूसली पिछले 10 साल से हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब एक नया स्टेप जो हम लेने जा रहे हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा डायबिटीज से जो बड़ा बर्डन है ओबेसिटी का, इसको कैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को बचाया जा सकता है, नंबर 1, कि ताकि वो ओबेसिटी तक ना पहुंच सकें, अपना लाइफस्टाइल या डाइटरी हैबिट्स और मे बी जो भी गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करें, और अगर खुदा न खास्ता अगर ओबेसिटी हो चुकी है तो फिर उसको कैसे मैनेज करना है। तो इस तरह नोवो नॉर्डिस्क जो है वो अपना रोल प्ले करने के लिए हाईली कमिटेड है, और आज से इंशाल्लाह ये
जो कैंपेन है बड़ा एक्टिवली विद ऑल द स्टेक होल्डर, जिसमें कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेनिश एम्बेसी हमारे साथ है. वी आल्सो कैन लर्न फ्रॉम डेनिश पीपल how they have reduced their obesity and improved their health. And then of course stakeholders just like Dr. Abbas and Government of Pakistan is always there. And then of course we have a few influencers like Faiza Salim with us, so people can easily understand their actually voice and their the communication. So this is the role of a pharmaceutical, not only कि हम सिर्फ दवाइयाँ बेचते हैं, हम इंसान हैं, इंसानियत की कदर करनी है और इंसानियत की खिदमत करनी है. ये भी हमारा इक्वल इम्पोर्टेंट रोल है. हमने सुबह बात की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह डिड अ लॉट बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, और इस बात पे कम से कम हमें फख्र होना चाहिए. लेकिन ये अकेले हमने नहीं किया, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अप्रोच लिया गया तो ही हम इसको इतना बैटल कर पाए. और सुबह भी हमने यही बात की, यूनिसेफ से नुमाइंदे थे, WHO से नुमाइंदे थे, हमने कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स को कॉल पे ली लाइव, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द डेनिश एम्बेसी एंड द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स दैट आर ऑन बोर्ड विद अस. तो ये बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्पेशलिटीज कंबाइन करके इस स्टेप को आगे लेकर जा रहे हैं. हमारे पास इस वक्त स्टेज पे मौजूद है डॉक्टर सैयद अब्बास रजा. वैसे तो आप सब उनको जानते हैं, but it's very important to mention here that he is a consultant diabetologist and endocrinologist, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पे और नेशनल हॉस्पिटल जो कि लाहौर पाकिस्तान में है. डॉक्टर सैयद अब्बास रजा जो है वो सैफिस के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, and he is also an executive member of the International Society of Endocrinology and is also working with the European Association for Study of Diabetes. ये यूजुअली मैं कहती नहीं हूँ जब मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, लेकिन क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है and it's very important to establish where the information is coming from and the source of information, इसलिए इतना मैंने डिटेल्ड एक इंट्रोडक्शन दी. वरना इनके बारे में मैं यही कहती हूँ कि ये वॉक टॉक ईट ब्रीथ सिर्फ डायबिटीज के ऊपर बात करते हैं, पूरी दुनिया घूम के सिर्फ डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं. तो आज टॉपिक हमने उनका बदल दिया, हम डायबिटीज से उनको एक स्टेप पीछे ले गए और हम उनसे कह रहे हैं कि आज ओबेसिटी पे बात करें. सब थैंक यू मोज़ा. अब मेरे ख्याल में इससे अच्छा स्टेज मेरी भी कन्वर्सेशन का नहीं सेटअप हो सकता था. आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात की कि हम लोग मेरी आज सुबह भी प्रेजेंटेशन में एक जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि डायबिटीज़ वो है जो कि जिसका मैं इलाज करता हूँ. 20 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर अंदाज़न जिनको डायबिटीज़ है, उनमें से कुछ का मैं इलाज करता हूँ और हम सारे एज ए कम्युनिटी उसका इलाज करते हैं. दूसरी मेरी स्पेशलिटी मेटाबॉलिज्म है, जिसमें जो कि कोर कॉज है सबसे ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की प्रॉब्लम्स की. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ उन्हें कहते हैं जो किसी से लगे ना, जिसमें आप नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज़ आ जाती है, हार्ट डिजीज़ आ जाती है, ब्लड प्रेशर आ जाती है. अब इन सब बीमारियों का तो हमने एज सच लेबल लिखाया हुआ है, इनका हम इलाज करते हैं और उनकी प्रॉब्लम करते हैं. लेकिन अगर जिस तरह हम एक चीज़ को पीछे स्टेप पे लेके जाएं तो इनकी जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, वो जो मेजर रीज़न है इन चीज़ों के लिए वो होता है ओबेसिटी, वज़न का बढ़ना. आज सुबह भी मैंने डिस्कस किया कि लकीली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को रिप्रेजेंट करूं पाकिस्तान के लेवल पे, फिर साउथ ईस्ट एशिया के लेवल पे एज प्रेसिडेंट ऑफ सैफिस, और अब आजकल इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी जिसमें 120 कंट्रीज़ हैं, उसमें फ्रॉम एंडोक्रिन पर्सपेक्टिव से मैं रिप्रेजेंट करूं पाकिस्तान को. सो हम लोगों ने बड़ा सोच के एक अंदाज़ा लगाया कि अगर सिर्फ हम वज़न की बात करते हैं जिसके साथ ओबेसिटी का आता है तो वो थोड़ा सा आपके प्योरली फोकस करता है मोटापे के ऊपर. लेकिन अगर आप इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि ये मोटापा है जो कि मेटाबॉलिक डिजीज़ करता है, जिसको हम फिर मेटाबेसिटी कह सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स प्लस ओबेसिटी, उसकी एक रीच फ़र्क होगा, उसका इम्पैक्ट फ़र्क होगा और उसमें जो उसकी जो हमने मेजर्स करने हैं वो फ़र्क होंगे. तो इसीलिए हम लोगों ने मेटाबेसिटी की टर्म
या ओबेसिटी की टर्म को ज़्यादा इस्तेमाल किया है आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर, और फ्यूचर में भी प्रॉब्ली इस तरह की ही कोई टर्म इस्तेमाल होगी इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर। लेकिन कोर है कि जो हमारे मुआशरे में मैं दो चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारे जो मोटापे की आपने बहुत ज़्यादा डिस्करेज करना है सोशल मीन्स में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो उसकी आउटकम्स को प्रिवेंट करना है, हमने उस पर फोकस करना है कि अगर कोई किसी का वज़न ज़्यादा नहीं है तो उसको मोटिवेट करना है कि वज़न गेन ना करे। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो हमने उसको मोटिवेट करना है कि वो उसको हेल्दी लाइफस्टाइल में आए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वज़न बहुत जल्दी ख़त्म भी कर लेगा, लेकिन इसमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप मोटापे में करें तो उससे आपकी कॉम्प्लिकेशन कम होती हैं। तो ये हमारा इस पूरे दिन का मकसद ये है। तो इसमें आइडियल कोई भी कैंपेन चलाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जिस तरह खाने में आप कोई चीज़ भी खाना बनाना हो, उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, और वो होंगे तो वो होंगे। मैं बड़े इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि ओबेसिटी के ऊपर, मेटाबेसिटी पे मुझे अपनी दुनिया में तो बहुत अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन मेरा ही तकरीबन 8-10 साल से इस पे काम हो रहा था। मैंने पहले एक प्रोजेक्ट किया हमने यंग एडल्ट्स की हेल्दी लाइफ के ऊपर, वो हमारा कामयाब माशाल्लाह से गया। फिर हमने एक एक्सपर्ट पैनल की रिकमेंडेशन बनाई, फिर हम गाइडलाइंस बना रहे हैं। लेकिन इस इंग्रेडिएंट्स में कुछ चीज़ों की कमी थी, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो इंग्रेडिएंट्स आज पूरे हो गए हैं, और प्रॉब्ली आपके सामने ही उनमें से कुछ बैठे हुए हैं। किसी भी कैंपेन के लिए एक आइडिया और एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरी होती है, जिसके लिए हम आज जमा हुए। ओबेसिटी फोरम बना। आई विल बी हैप्पी एंड ऑनर्ड इफ आई एम आस्क्ड और टू लीड दिस। सो अगेन एक कंपोनेंट तो चलो मैं वो कर देता हूँ एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। फिर ज़रूरत होती है आपको सपोर्ट की, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि नोवो नॉर्डिस्क ने ये चीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने कहा जी कि अगर एज लॉन्ग एज इंटेंशन सही है और कैंपेन सही है तो वी विल सपोर्ट यू इन डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन। तो वो मिल गई। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि इसकी रिकग्निशन गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। एंड अगेन उसमें बहुत हम खुशकिस्मत हैं कि डेनिश एम्बेसी प्लस पाकिस्तान एम्बेसी प्लस WHO इसमें एग्री कर गई हैं कि ये ना सिर्फ प्रॉब्लम है बल्कि इसमें हम आपके साथ मिल के काम करने को तैयार हैं। और फाइनली फायजा मेरे साथ बैठी हुई हैं, हम जितनी मर्जी बातें करते रहें, जब तक आपकी किसी भी कन्वर्सेशन को 50,000 हिट नहीं मिलेंगे या 150 हिट नहीं मिलेंगे तो वो कन्वर्सेशन वो 4 बंदों में रह जाती है, उसके बाद फिर वो बात आगे नहीं चलती। सो हमने ऐसे बंदे को पकड़ा जिस दिन वो अपना सुबह उठ के ये भी बताती है ना कि आज का मौसम अच्छा है, तो वो कम से कम वो कराची का मौसम पूरे दुनिया से कोई 2 लाख बंदा कहता है यार कराची का मौसम अच्छा है। So again, we will definitely want her. She has the passion, she has the enthusiasm, and she has the will as well as reach. कि जो भी बात कर रहे हैं, हम साइंटिफिक बात में तो ऑब्वियसली कुछ बात कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट लेवल पे उसकी सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन मासेस को रीच आउट पहुंचने तक हमें एक बंदे की एक पर्सनैलिटी की ज़रूरत थी जो कि हमारे मैसेज को आगे कन्वे कर सकें। नो वन बेटर देन दिस। लास्टली बिफोर आई फिनिश, जस्ट फॉर ऑडियंस, कि हम लोग समझते यही हैं कि मोटापा जो कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड की है, लेकिन अब आपको आज के दिन के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये वो प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह कोविड सारी दुनिया की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम भी है। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन डायबिटीज़ और ब्लड वज़न ये हम सारी दुनिया की प्रॉब्लम के साथ साथ हमारी प्रॉब्लम भी है। हम डायबिटीज़ में 4थे नंबर पे हैं, ओबेसिटी में 9वें नंबर पे हैं। सो अगेन ये सब चीज़ें हमें अपने साथ लेके जरूरत पड़ेंगी। जिस तरह हमने कोविड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही अल्टीमेटली उठाई, इसी तरीके से ओबेसिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें खुद ही उठानी पड़ेगी और इसमें ही वे आउट करेंगे। एंड अगेन आई एम बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का जो स्टेबल बैठी है, एंड ऑब्वियसली आप लोगों का जिन्होंने आके एटलीस्ट ये मैसेज सुन के आगे डिसेमिनेट करने का इरादा किया। थैंक यू। Right, thank you. We will be opening the floor for questions. This is the day I've been waiting for, dreaming about. पहले तो सबसे पहले शुक्रिया नोवो नॉर्डिस्क का कि मुझे कंसिडर किया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैंने और आई थिंक नोवो नॉर्डिस्क ने बड़ा तबसरा किया इस बात पे कि व्हाई मी। तो मेरे लिए प्रोफेशनल और पर्सनल रीजन दोनों है। एक तो ऑब्वियसली प्रोफेशनली आई सी नोवो नॉर्डिस्क ग्रोइंग मैसिवली ओवर द इयर्स, so anyone and everyone would want to be associated with them. Plus I've seen their work with other types of diseases. तो मुझे पता है कि जिस तरीके से बाकी कैंपेन्स लेके चले हैं बड़े टेस्टफुली और एक
तमीज के दायरे में, किसी को शेम किए बगैर, किसी के ऊपर उंगलियां उठाए बगैर अवेयरनेस कैंपेन्स हुई हैं, तो हम चेंजिंग ओबेसिटी के साथ भी यही करेंगे. Personally, this is a cause that's very close to my heart. Throughout my career, I have spoken extensively about body shaming. लेकिन ये मैंने पहले भी ये बात कही थी कि उस हिसाब से नहीं कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि ओबेसिटी है क्या, इसको कैसे देखना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, उस पर कम बात हुई है. तो हमारे यहाँ ये होता है कि एक तो हमारे लिए एक ये है कि भाई अगर कोई ओवरवेट है तो दैट पर्सन इज नॉट लुकिंग गुड, whereas it's more about whether they're feeling good or not. और एक और चीज जो हम करते हैं वो हम सबको एक ही एम्बिट में ले आते हैं. तो स्लाइटली ओवरवेट इंसान होगा तो वो भी मोटा या मोटी है, ओवरवेट होगा तब भी वही एक ही बात है. ओबीस है, मॉर्बिडली ओबीस, हमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 टाइप ओबेसिटी का हमें नहीं पता कि डिफरेंट टाइप्स भी होती है. तो हमारे लिए बस ये कि अच्छा मोटा है, ये बुरा लग रहा है, इसकी शादी नहीं होगी, इसके बच्चे, हमारे लिए यही कंसर्न है. whereas this is a huge health concern as opposed to a cosmetic concern. हमारे यहाँ पाकिस्तान में और हमारी जैसी और कंट्रीज में अभी भी इसको ऐसे देखा जाता है, यार मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा. तो मुझे ये फील हुआ कि एक तो मेरी खुद की जर्नी ऐसी है कि मैं बात कर सकती हूँ, एंड बिकॉज आई एम द एक्सेप्शन टू द रूल, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन एंड मेन and children as well who are like me, who have the same they look the same, but they cannot speak up because उनके पास वो sort of वो confidence नहीं आया, या उनके अराउंड लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि उनके साथ किस तरह से बिहेव किया जाए. सो मैं उन हजारों लाखों लोगों की आवाज बन के सामने इनके आई हूँ, और वो ब्रिज, जो गैप हमें ब्रिज करना है ना, कि ठीक है हमें एक प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्व करना है, बट इसको किस तरीके से करना है, और रियल लाइफ स्टोरी मेरे जैसे शख्स की क्या है, और उससे कैसे बात की जानी चाहिए, वो गैप ब्रिज करने के लिए आई थिंक आई एम अ गुड फिट, आई वुड से. तो वो बहुत जरूरी है, बिकॉज हमें ये भी देखना है कि हम बात तो करें, किसी समवन हैज ओबेसिटी तो उससे हमें बात तो करनी, लेकिन हमें इन्फॉर्म्ड बात करनी, हमें वी हैव टू स्पीक टू देम विद सम नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट मैटर. हमारे यहाँ होता है भाई कोई भी आके किसी को भी टोटका दे देता है, यार तुम ऐसे करो कि नीम गर्म पानी में ये डाल दो और तुम्हारा 2 हफ्ते में जो है तुम देखना तुम बिल्कुल ही गायब हो जाओगे. तो ये फालतू चीजें होती हैं जो किसी की मदद नहीं करती. लेकिन हमारा हर बंदा, आपके खानदान में 10 लोग ऐसे होंगे जो डॉक्टर बने फिर रहे होंगे, तो कोई आइडिया नहीं है कि ओबेसिटी है क्या, क्या और फैक्टर्स होते हैं हेल्थ, डाइटिंग और एक्सरसाइज के अलावा जो कंट्रीब्यूट करते हैं ओबेसिटी की तरफ. इसकी कोई अवेयरनेस नहीं है. सो आई एम होपिंग दैट हैविंग मी ऑन बोर्ड वुड आल्सो हेल्प नोवो नॉर्डिस्क टेल आवर स्टोरी इन एन ऑथेंटिक मैनर. कि ये नहीं कि बस वो हमने इम्पोज कर दिया लोगों पे कि यार आप ये करो ये नहीं करो. It's important that we know how to start the conversation and also be aware of the direction that it should take. I'm quite hopeful कि ये बड़ा अच्छा साबित होगा. Okay, so I get what you're saying, Faiza. मुझे इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने दो. कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें अगर हम बात करें तो मुसीबत हो जाती है, ना बात करें तो मुसीबत हो जाती है. तो तुम ये कह रही हो कि ओबेसिटी को सीरियसली लेना चाहिए, and we have to focus on how the person feels and not how the person looks. Yes. Right? Okay. So what's the first step towards doing that? पहला जो आप देखना चाहती हो, जो चेंज देखना चाहती है, वो आप क्या देखना चाहती हैं? I think we are going towards taking the first step. हमारा जो DV series भी जो अभी रिलीज हुआ है और जो आगे भी रिलीज करेंगे, हम जो मैसेज जो हम दे रहे हैं लोगों को, वो बड़ा एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड मैनर में दिया जा रहा है, ये आसानी से समझा भी जाए. तो वो अवेयरनेस पहले, जब तक एजुकेशन नहीं होगी, रिकग्निशन नहीं होगा ओबेसिटी एज अ डिजीज, तो जाके प्रिवेंशन और क्योर के ऊपर तो बात आती है ना. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन व्हिच वी आर डूइंग ऑलरेडी, एंड देन टू टेक थिंग्स फ्रॉम देयर as opposed to just saying whatever everybody feels like. I think informed, जो आपने मुझसे बोला कि बात की जाए या नहीं की जाए, बात की जाए बड़ी तमीज तरीके से की जाए, और and the conversation should have some basis of knowledge and awareness. Basically जो आप कह रही हैं और जो डॉक्टर अब्बास कह रहे हैं और जो राशिद साहब कह रहे हैं, वो तीनों एक ही बात है. लेकिन I love आप समझ रहे हैं, different perspectives हैं. So Faiza sort of focuses on the social impact of it, the mental, the impact of it,
and Dr. Abbas on how it's just not been taken seriously enough. Obesity कहते हैं, मुझे याद है जब डायबिटीज को हम नहीं तो हमने डायबिसिटी का वर्ड बनाया कि देखो जो मोटे हैं उनको डायबिटीज ज्यादा to start. हाँ, मे बी ये वो चीज़ थी जो बहुत पहले एड्रेस करनी चाहिए थी. हाँ, बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये बहुत पहले से एड्रेस हो रही है. सो ये नहीं है कि मतलब हमने कोई 3 साल पहले पाकिस्तान में सोचा तो सारी दुनिया की नज़र पड़ गई है. ये वो चीज़ है जो ओबेसिटी तो डे अभी मनाना शुरू किया है, बट ओबेसिटी के बारे में तो बहुत अच्छे से बातचीत चल रही थी. प्रॉब्लम ये होती है कि आपको रियलाइजेशन होती है जब उसका इम्पैक्ट आपको समझ आता है, जब आपको लिंक मिलना शुरू होते हैं ना, तो देन यू नहीं कि जब आप धागा खींचना शुरू करो, जब एंड पे पहुंचते हो आप कहते हैं अच्छा ये था. सो आई थिंक मैं अगर इसको सिंपलेस्ट टर्म में करूं तो मैं ये कहूंगा कि हाँ ये अब हम एंड पे अब पहुंचे हैं. एंड अगेन आई थिंक इट वाज अ लिटिल लेट बट इट्स नेवर टू लेट. सो हम उस एंड पे पहुंच चुके हुए हैं. हमने अभी मेरे ख्याल में इन द रीसेंट पास हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन भी आई है जो कि सारी एक तरफ पॉइंट आउट कर रही थी, दैट वाज अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी लीडिंग टू दीज प्रॉब्लम. पहले हमारा फोकस बीमारियों पे ज्यादा था, अब हमारा फोकस प्रिवेंशन के ऊपर आ रहा है. अगर आप मोस्ट सिविलाइज मुल्कों में देखें तो प्रिवेंशन पे तो सबसे पहले काम होता है. हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रिवेंशन पे सबसे आखिर में काम होता है. तो अगेन अब चलो देर आए दुरुस्त आए, हाँ आए तो सही. तो आई थिंक अब जहाँ पे हम पहुंचे हैं हमने रियलाइज कर लिया हुआ है. अब उसको नाम क्या देंगे, जिस तरह आप कह रहे हो, हाँ मेटाबेसिटी समझना मुश्किल बात है, कहना मुश्किल बात है. ओबेसिटी सबको टर्म ओबेसिटी के साथ अपने स्टिग्माटा एसोसिएट है. तो मेरे ख्याल में मुझे फायदा की बात बहुत अच्छी लगी है कि हमने इसको, अब हमारा काम ये नहीं है कि हमने ओबेसिटी को डिफाइन करना है, हमने ये नहीं करना कि ओबेसिटी खत्म किस तरह करनी है या फिर जो भी कुछ. हमारा काम ये है कि इन दो चीज़ों को अलग कर दें. ओबेसिटी का जो एक फिजिकल कंपोनेंट है, एस्थेटिक कंपोनेंट है कि जी आप मोटे लग रहे हो और आप ये लग रहे हो, उसको हमने बॉडी शेमिंग के ऊपर या फिर हमने किसी को मजाक नहीं उड़ाना उसका. इसकी रियलाइज करना है कि ये एक प्रॉब्लम है जो कि किसी वजह से हुई है. कोई मेटाबॉलिक रीजन है, एंडोक्रिन रीजन है, ईटिंग के डिसऑर्डर्स हैं, कुछ भी है, दिस लिस्ट ऑफ थिंग जो कि लीड करती है. तो इसको हमने उससे अलग करने हैं कि अगर इस वजन को कम करेंगे तो उसके फायदे क्या हैं. तो आई थिंक इनको बड़ा क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाना, लेकिन उसको ये बताना है कि अगर आप अपना 5%, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर अपना जिस्म का 5% कोई अपना वजन कम करे, सो इफ समवन इज 100 किलो, वो 95 किलो का हो जाता है, ही इज स्टिल 95 किलो. सो अगेन ही इज स्टिल ऑन अ हैवियर साइड, ओबीस साइड पे होगा. लेकिन वो 100 से 95 में आते आते अपनी डायबिटीज के कन्वर्जन रेट, हाइपरटेंशन के कन्वर्जन रेट को तकरीबन 20 से 30% तक कम कर सकता है. सो अगर 100 से आप 95 भी आए हो तो आप प्रॉबेबली, अगर मैं गलत भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूं तो पहले भी मोटे थे बाद में भी मोटे हो, लेकिन आप 100 से 95 पे आए तो आपने अपनी बीमारियों के रिस्क को कम कर दिया. तो ये मैसेज जाना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि आपका जो वजन है वो 50 किलो ही होना चाहिए, बट अगेन आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि दिखने में जो आपको इश्यूज आ रहे हैं वो बहुत माइनर हैं, जो मेटाबॉलिक हैं वो ज्यादा मेजर हैं, और दिखने पे हमें किसी को इतराज नहीं करना चाहिए. और बे सोचता है जो जिसका वेट ज्यादा हो दिखने में सबसे बेहतर हो हम में से, लेकिन जो मेटाबॉलिक इश्यूज हैं वो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे कि ये रीजन है, इनको इसलिए हमने काम करना. So we're worried about what's happening inside. I just like to add, Novo Nordisk में my favorite line है, and I think it really sums up everything. Learn to separate the person from the disease. So what we do is we just decide people or obese people कि अच्छा ये ऐसा होगा, ये lazy भी होगा, ये unambitious भी होगा. इसका तो basically we write them off. कुछ नहीं होगा इसका कुछ नहीं होगा जिंदगी में. And that's वो पूरा एक cycle बनता जाता है. अच्छा, सुबह आपने एक और बात की थी, आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं हम सब के खानदान में एक ऐसा बंदा होता है, हाय ये तो सुबह से लेकर रात तक खाता जाता, खाने लगती भी नहीं. और फिर हमें जो हवा भी खा लेते हैं तो थोड़े से फूल जाते हैं. So I mean it could be anything, right? हम इन एग्जाम्पल्स को अगर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल क्यों नहीं देखते हैं? So I understand that. Is there anything else that you'd like to add, Faiza? नहीं, बस यही कि I think we need to understand how to deal with people with obesity, and बात करने का सही तरीका अभी कोई वो नहीं है कि you asked me if I learned something. I'm still learning, and I think everyone should be open to learning about obesity and
कि उसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट क्या है other than that person's appearance. मेंटली स्ट्रगल किया है आपने? Of course, मेंटली तो स्ट्रगल करते ही जाते हो ना, जब अगर आपको क्योंकि for someone like myself, for example, I've always been either overweight or obese or struggled with weight in some way or another. So ये होता है कि आपको लोग जब वो गलत हेल्थ एडवाइस देते हैं, और जो मैंने बार बार मैं इस बात पे एम्फसाइज करूँगी, सही हेल्थ एडवाइस देना सही तरीके से 1-to-1, हम लोग क्या कहते हैं, हम सब मिलके फैमिली इंटरवेंशन करते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, बेइज्जती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और लोगों को लगता है यार देखो एंड में माइंड नहीं करना, हम तो जस्ट कंसर्न फॉर योर हेल्थ, माइंड नहीं करना, तुम्हारी हेल्थ के लिए कंसर्न। वो सबसे ज्यादा बड़ी बेवकूफी हमारे माशरे की, ये समझना कि किसी को आपने किसी को बोल दिया बुरी तरीके से, आपने उसको बता दिया कि भाई तुम्हें तो बहुत जरूरत है वजन कम करने की, तो वो वजन, दैट इज द लास्ट थिंग, एंड टेक दिस फ्रॉम मी, दिस इज द लीस्ट इंस्पायरिंग थिंग दैट समवन कैन से टू मी। मेरे ख्याल से जिनका वजन ज्यादा हो उनके घरों में भी मिरर्स होते हैं, उनको भी पता होता और है, पता उसके होता है। बारे में कोशिश भी करते हैं और स्ट्रगल भी करते होंगे, लेकिन अगेन we really can't presume to know about their struggle. I'm going to open, ladies and gentlemen, are we ready to open the floor for question answer? Okay, कोई भी सवाल हो obesity और world obesity day के हिसाब से तो please feel free to ask right here. कुछ सकते मैं कुछ नहीं कहती. Yes sir. जी. ठीक है. तो उसमें जो उसकी कॉम्बिनेशन है उसमें वो काफी फ्लोर मिल्क जो है सूजी मैदा वगैरह निकाल देते हैं. हाँ. और इस वजह से भी ये डिजीज जो है वो होती है. तो इसमें गवर्नमेंट की सतह पे भी काम होना चाहिए कि इसको कंट्रोल करें. So again, अगर मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट तो ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो आप तो मेरे ख्याल में 200-300 सवाल जमा हो जाए फिर एक साथ ही जवाब दे देते हैं, क्योंकि आपने आटे की बात की है, दूध की बात है, रोटी की बात है, चावल की बात है. अब अगेन आई थिंक इसकी रेगुलेशन पे मैं कुड नॉट एग्री विद यू, और हमने सारी चीज़ों का अच्छी चीज़ निकाल के उसको ज़ाया कर दी है, सब चीज़ों की बुरी चीज़ अपनी निकाल ली है हमने. शुगर केन को इतना प्रोसेस करके चीनी कर दी है, चीनी को एक्सेप्टेबल कर दिया हुआ है, उसका यूज़ बढ़ा दिया हुआ है, आटे को ख़राब कर दिया हुआ है, मिल्क को ख़राब कर दिया है, हर चीज़ के बारे में. सो आई थिंक कभी भी आप हेल्थ की बात कर नहीं सकते. मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूँ विदाउट टेकिंग मच टाइम, तो मुझे इस तरह मेरा एक दोस्त कहीं बाहर रेडी पे बैठा खा रहा था उधर, तो मैंने उससे जाके कहा, मैंने कहा यार तूने गाड़ी नहीं ली है, जाके एक काम कर, एक सामने खोखा खुला हुआ है उधर, जब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का 2 नंबर किस्म का तेल मिलता है, 100 रुपये सस्ता मिल जाएगा, तो टैटेगी फिर वहाँ से बात कहता दिमाग ख़राब है, मेरी गाड़ी का इंजन ख़राब नहीं हो जाएगा. तो मैंने कहा तू अपने इंजन में ये बाहर रोड साइड पे मोबिल ऑयल में बना हुआ समोसा खा रहा है, ये अपनी बॉडी की इंजन में जो चीज़ आ रही है उसका नहीं पता आपको. जो गाड़ी के अंदर तेल डालना है उसका आपने ध्यान रखना है कि वो आपका किसी अच्छी कंपनी से लेंगे. सो अगेन वो जो अपनी इंजन में, सो अगेन दिस इज लॉट अबाउट डाइट, exercise, lifestyle, and then disease process, and ये सारी चीज़ें when you combine everything, then the problem. And again, इस मीटिंग का या आगे मीटिंग्स का फ़ायदा ये नहीं है कि हम कहें जी आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे, मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए. इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम वी आर एग्रीइंग टू डाइसेक्ट द ओबेसिटी प्रॉब्लम. फायजा का अपना रोल होगा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, कंपनी लेवल के ऊपर, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हम सबका काम ये होगा कि प्रॉब्लम को डाइसेक्ट करें, ओपन अप करें. जब कोई भी चीज़ ओपन अप होती है ना, जब जो चीज़ भी क्लियर होती है तो उसका सोल्यूशन निकालना आसान होता है. जब एक बंद डब्बा होता है ना, आप गैस ही करते रहते हो कि प्रॉब्लम क्या क्या चीज़ें हैं. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जस्ट ओपन द प्रॉब्लम अप, सी व्हाट्स इन देयर एंड ट्राई टू सॉल्व इट. डेनिश एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम उनके मुल्क से ले सकते हैं, but as people what can we learn as a nation? It's the biggest force कि हम गवर्नमेंट से बात ना करें, फार्मास्यूटिकल से बात ना करें, अगर हम खुद अपने ऊपर रख के सोचें. So as people, this would be my question to you, what can we do as individuals to combat obesity, and how can we learn from other countries, especially Denmark? Well, I think thank you. Learning is key. I think what is being said here demonstrate how complex a problem we are facing. And what can we learn, and what can we learn from other countries? Denmark has in no way cannot claim victory to obesity, unfortunately.
I would wish we could, but not yet. No country can. But I do think that there are important lessons worldwide and also from Denmark that are important to take on board now facing the problem. I think Danish studies, one key lesson is that it's social support that will make all these various, I need to improve my Urdu, but as I understand my colleague here, the healthy lifestyle, the healthy eating habits are extremely important. It's the social support that will make it work, because it's a combination. So looking at Denmark, I think what the Danish government and the Danish authorities have been working on is to make it easier to have a healthy lifestyle. So for instance, make it easy to choose bicycle as your preferred way of going to work or going to school. So today, if you go to Copenhagen, you will see lots of bicycles. You will actually see that the preferred way of transporting yourself is by bicycle. And that goes for, you will see the ministers going on bicycle to parliament. You will see the kids going back and forward to school, because transportation is safe. And it goes whether it rains or snow, sunshine, summer, winter time. I think that's one example. Then it's also about having healthy food policy in place. When you do taxation, is it very cheap to go and buy soft drinks? Or is it very expensive? Do you encourage drinking water? That's what type of food are available for our kids when they go to school. I think that's another, and I think there's some very important lessons. It's also about what kind of workplaces do you have, and so when you are an employee, are you entitled to holiday? Are you entitled to a work life not too stressful? Actually, I think that Novo Nordisk, as a big employer in Pakistan, has some quite good examples there on providing a workplace where you can learn, which is safe for men and women, but where you can also balance family and work life, and that's also part of challenging solving the obesity problem. Thank you. I'm going to loosely translate what you said, Liz. कहते हैं कि हालांकि उन्होंने ओबेसिटी के ऊपर बहुत पहले काम करना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो आज यहाँ पे खड़े होकर ये नहीं कह सकती है कि उनके मुल्क में उन्होंने ओबेसिटी के चैलेंज को ओवरकम कर दिया है, लेकिन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए. अब वो कहते हैं कि गाड़ी और ट्रक और ट्रेन और बस से बेहतर है कि हम बाइसिकल पे काम पे जाएं, और इसी तरह चाहे बारिश हो रही हो कुछ हो रही हो, वो बाइसिकल पे बच्चे भी बड़े भी जो ऑफिस जाते हैं, और जो इनका प्राइम मिनिस्टर है वो भी बाइसिकल पे ही जाते हैं पार्लियामेंट हाउस. ये छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं जो बाहर मुल्कों में हो रही, लेकिन मुझे पता है इसका जवाब क्या होगा पाकिस्तान में. हम बहाने बनाने में तो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, हम कहेंगे सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है. फिर उन्होंने खानों के बारे में बात की कि हमें फास्ट फूड को महंगा और अच्छे हेल्दी खाने को सस्ता कर देना चाहिए, तो फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर देंगे. हमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए. और फिर उन्होंने तीसरी बात स्ट्रेस के ऊपर की कि जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, क्या वो एक हाई स्ट्रेस प्लेस है या एक बहुत अच्छी जगह है काम करने के लिए. कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं हमारी ही ज़िंदगी के बारे में जिसके ऊपर हम कंट्रोल ले सकते हैं. और यहाँ पे आती है हमारी थोड़ी सी लेजीनेस कि हम कंट्रोल नहीं लेना चाहते. Rashtab, I'd like to have you maybe perhaps end the press conference with a closing note. There is a question, please. Oh, जी, please. कहाँ से आ रहा है सवाल? Educate the people that do have some sort of, they want the knowledge about their. Okay, I'll start answering. आपका सवाल. My question is that how will we root out this menace on the grassroots level, on the far-flung areas,
I would love to have the answer from the whole. I'll start it off and then I'll give the answer to Dr. Abbas. There are lots of issues that we can't tackle. Food regulations is something that Dr. Abbas will talk about. But then we also have to work with what we have. अगर हम इस बात के इंतजार में बैठे रहेंगे कि गवर्नमेंट जब हमारे लिए फुटपाथ बनाएगी तो ही हम चल पाएंगे, we can't do it. क्योंकि मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जब फुटपाथ बन जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारी बहनें और हमारी औरतें और हमारी बीवियां जो है वो बाहर नहीं चल सकती क्योंकि सिक्योरिटी का इश्यू है. फिर हम घर बैठ जाएंगे कि जब वो सिक्योरिटी का इश्यू सॉर्ट आउट होगा तो फिर हम चलेंगे. सो वी नीड टू वर्क विद व्हाट वी हैव. अपार्टमेंट में रहते सीढ़ियां लें, लिफ्ट ना इस्तेमाल करें. आप अगर किसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं उसी कॉम्प्लेक्स की गोल गोल चक्कर काटें. देयर इज ऑलवेज अ विल and there's always a way if you have the will to. ये वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं. जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि हम किसी तरह मैन्युफैक्चरर्स को, गवर्नमेंट को लॉबी करें, रैली करें, उनसे कहें कि हमारी तो मदद करें. ठीक है डॉक्टर अब्बास, can you take it away? Muzna, I could not agree with you more. Again, I totally agree with you. You had 1, 2 or 3 questions. Actually, I have 100. And that's why we are here. We want to answer them. But if I tell you these, we have found the answer and we are having a press conference to announce the answers for all the problems that we have. We don't. Inshallah, day will come that out of my 100 questions and your 3 questions, out of those 103 questions, next time when we'll come up with at least 10, 15, 20 answers, and then we'll keep in growing on that. So that's where I would finish. So your points are very well taken, but again, these are the problems. We just, again, अगर आप मेरा बोला थे, we're just opening up. Pandora box is not the right analogy, but we're just opening up the problem, and we're trying to, at least we are starting in a direction that we want to open up. Yes. Thank you. Very, very valid questions. And just echoing the doctor, I think that the most important thing is about partnership. And that's why it's so important to start the dialogue. Because you need to create the awareness, and then it's about health policy, it's about food policy, it's about urban planning, it's about responsible business, it's about education, it's about parentship, it's about a lot of things, and a society needs slowly to integrate obesity in all these matters. Business, government, civil society, academia. It's a very complex, but you need to start the dialogue going, and you need to look at solution in all the different spheres of a society. Thank you. Absolutely. और उस वक्त तक घर पे ना बैठे. Let's at least try to work with what we have. क्योंकि हम अगर अपने घरों में मतलब अगर मैं अपनी बेटी से बात करूं और नेगेटिविटी फैलाने की करूं तो it would become very difficult to feel good about our country. और अगर हमने वो जज्बा लाइव रखना है so कहीं ना कहीं से हमें पॉजिटिविटी रखना है दिल में, वरना हम सब टूट के बिखर जाएंगे. So I'm going to have Pratap end the press conference with his final concluding address. Sir. Thank you very much. I think the objective is achieved for the beginning of this platform, जो कि एक changing obesity है, और इसका जो है तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हैं. काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम सिर्फ छोड़ देते हैं कि जी हमें मिलेंगी तो हम कुछ करेंगे और फिर खुद आराम से बैठ जाते हैं. लेकिन हमारा पर्सनल व्यू ये है कि एटलीस्ट हम अपनी जगह के ऊपर अपना काम करें, और जब टॉट मिलते जाएंगे तो एक अच्छा नेटवर्क बन जाएगा और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा. लेकिन हम इस बात पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें कि मुझे अगर ग्राउंड मिलेगी तो मैं खेलूँगा, तो फिर शायद मैं नहीं खेल पाऊँगा. तो इसलिए हमें खेलना चाहिए, जो कुछ हमारे पास है उसको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए. ये नहीं करना चाहिए कि जी कुछ नहीं मिलेगा हमें और ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे. उसकी ख्वाहिश करनी चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जब तक नहीं मिलेंगे तब तक क्या करना है, दैट इज़ इंडिविजुअल चॉइस. सो वो हमें ये अवेयरनेस को इंक्रीज करना है. और इसके लिए लास्ट माई कमेंट इज वी एज ए नोवो नॉर्डिस्क
हम कमिटेड हैं कि हम इस अवेयरनेस पे काम करेंगे। इसी तरह जितने स्टेक होल्डर हैं, डेनिश एम्बेसी है, डॉक्टर अब्बास हैं, फायजा हैं, गवर्नमेंट है, ऑल आर एग्रीड कि हम इस नोबल कॉज के लिए अवेयरनेस पे काम करेंगे। लेकिन आई थिंक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि नाउ इस वक्त जितना आप इस चीज़ को स्प्रेड आउट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को, अवेयरनेस को, शायद हम एक बंद कमरे में बैठ के इतना नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों की कंट्रीब्यूशन का भी, और हम लोगों की आपसे भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ को फर्दर प्रमोट भी करें अपने चैनल्स पे या जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, इसको ज़रूर स्प्रेड आउट करें, ताकि अगर किसी एक इंसान को भी समझ आ जाती है तो मेरा ख्याल है कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। Absolutely. Thank you so much. Thank you so much. और आप लोगों का भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया. I know you all have your press releases, but remember today is all about recognizing obesity as a problem. चाहे आपके मुंतज़र एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया. Wonderful meeting it is, and hopefully we'll bump into each other some other time as well. Yeah, I hope that we make sure that we can. We do. So if you're